So we're doing protein synthesis inhibitors. You all know the topic. Okay, let's start. If you have questions, you can ask me in the chat area. I have you all noted, so just type your questions. Okay, I'm a little confused. This is my first time on Zoom. Sorry. Okay. Okay, so this is the classification. Bacterial, can you all hear me clearly? बिल्कुल साफ आवाज आ रही है? Okay. So bacterial protein synthesis, ये जो तुम लोगों का कैडजिन में tetracycline वाला chapter है, that is your protein synthesis inhibitors. ये protein synthesis inhibitors अगर उसे broadly classify करें तो वो broad spectrum, moderate spectrum and narrow spectrum में सही है. Broad spectrum में चूंकि कैडजिन में aminoglycosides का बिल्कुल अलग chapter दिया हुआ है, तो I have written it over here. ये भी broad spectrum में आता है aminoglycosides. We have chloramphenicol, tetracycline is very broad spectrum. Then we have moderate spectrum. In moderate spectrum we have macrolides. Macrolides के नाम सबको पता होने चाहिए. Tetracyclines के नाम पता होने चाहिए. Macrolides में azithromycin, erythromycin, clarithromycin आ जाता है. Then we have ketolides. We have then narrow spectrum में we have lincosamides, streptogramins, and linezolid. This is the classification. Let's move on. For knowing the mode of action of each of these drugs, each of the protein synthesis inhibitors. अच्छा पहले एक मिनट. So protein synthesis inhibitors ये कह रहे हैं, ये किसका protein synthesis inhibit कर रहा है? Is it the bacterial cell or the human cell? You cannot see the screen. Can you, now we can see. Acha. Can you see the classification on the screen? Can you see the classification of protein synthesis inhibitors on the screen? Okay, thank you, Gobind. Acha. So now you can look at the screen and yeah.
had asked you what we should be discussing, but no one replied. We're discussing protein synthesis inhibitors today. Okay, are you all with me? Okay. So this is a bacterial cell. It's different from, it's called a prokaryotic cell. It's different from the human cells since humans have eukaryotic cells. So this prokaryotic cell has a cell wall. It has a plasmid. It has ribosomes. It has a cell membrane, a nucleoid. If an antibacterial drug acts on the cell wall, it's called the cell wall synthesis inhibitor. Can you look at the picture now? No. Can you look at the bacterial cell wall picture? It's a bacterial cells picture. No. What can you see on the screen? Okay. Can you look at the a picture of the bacterial cell? Oh, what do I do now? Can you look at the picture now? Okay, so this is the picture of the bacterial cell. If the antibiotic acts on the cell wall, it's called the cell wall synthesis inhibitor. If it acts on the nucleotide, it's called
it's called the nucleic acid synthesis inhibitor. If it acts on the ribosome, this is the ribosome, it's called a protein synthesis inhibitor. Can you look at my mouse on the screen? Okay. So it's called, if the antibiotic works on the ribosomes, it's called the protein synthesis inhibitor. Now the question is, why doesn't the same antibiotic act on the cells of the human beings, on the ribosomes of the humans? The answer is the ribosomes of the bacteria consist of 70S ribosomal subunit, and that of the human beings, that of the mammals, have 80S ribosomal subunit. Because of the structural difference, the only work on the bacterial cells. Okay. Coming to the mechanism of action. For the mechanism of action, you are supposed to know. For the mechanism of action, you all are supposed to know how the protein is synthesized in bacterial cells. Okay. I want to bring this chat on the screen so I can read out your questions. Okay. So what happens is the three things that are needed for protein synthesis in bacterial cells. Number one is the tRNA or the transfer RNA. Number two is this messenger RNA, this gray line, which is called the messenger RNA. This is the transfer RNA. And the third thing is the ribosomal subunit, bacterial ribosomal subunit. This bacterial ribosome consists of two parts. It consists of the larger unit, which is called the 50S, and the smaller unit, which is called the 30S. Can you all hear me? Okay. So for protein synthesis in the bacteria, we need three things. We need the transfer RNA, we need the messenger RNA, and we need the ribosomal subunit. This ribosomal subunit consists of the 50S, which is the larger unit, and the 30S, which is the smaller unit. Now what happens is that when this is an amino acid, when the transfer RNA, okay, this ribosome has these three yellow boxes, it has three parts. When the transfer RNA with one amino acid comes and sits on the first part, there is a transfer RNA beside it, which has a peptide chain.
So after this transfer RNA, it comes and sits on this site on the messenger, and messenger RNA has codons, and this transfer RNA has anticodons. So this transfer RNA comes and sits on its anticodons, come and sit on the messenger RNA's codons. After this step, the second step is that the transfer RNA that is beside this transfer RNA, it has a peptide chain linked to it. This peptide chain comes and attaches to the amino acid of the transfer RNA that just came and sat. When this peptide chain comes and sits on this amino acid, T5, this transfer RNA, it is released. This is step 3. It is released and it does the process again. After it is released, this transfer RNA with the long peptide chain, transfer RNA 6, with this long peptide chain, it comes and sits on T5, transfer RNA 5's position. And then a new transfer RNA 7 comes and sits on this site. Do you understand this mechanism? Anyone? किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी बता दो. समझ में आया? Repeat. Okay. Have अच्छा ये चैप्टर पढ़ा था? किसी ने चैप्टर पढ़ा था? अच्छा ये किसी ने पढ़ा है? जिसने पढ़ा है उसको समझ में आया. अच्छा सही. Okay, I'm repeating this again. Protein synthesis, bacterial protein synthesis के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं. पहली चीज है ट्रांसफर, दूसरी चीज है जो ये है ट्रांसफर आरएनए, ये हैं, ये सारे ट्रांसफर आरएनए T5, T6. फिर हमें चाहिए होता है मैसेंजर आरएनए, जो एक ये लंबी सी लाइन है, इस पे होते हैं कोडॉन्स. अच्छा कोई इतनी डिटेल पूछेगा, मगर जो मैकेनिज्म बस इतना पता होना चाहिए कि ये 50S पे अटैच होता है, ये बैक्टीरियोसिडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है. मैकेनिज्म में इतना पता होना चाहिए. अगर पूछ भी सकते हैं, ये पार्ट भी पूछ सकते हैं. सही. तो ये ट्रांसफर आरएनए है, ये लाइन जो है ये मैसेंजर आरएनए है, और ये राइबोसोम है, ये बड़ा सा पूरा ये राइबोसोम है. सही है. ये 3 चीजें चाहिए होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया में. प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया में क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको अपने एवरीडे मैकेनिज्म, अपने एवरीडे प्रोसेसेस चलाने के लिए प्रोटीन जरूरी है, और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है. ठीक है. So this is the transfer RNA, this is the messenger RNA. ये एक राइबोसोम है जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और ये सब कुछ बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है. So this transfer RNA with one amino acid sits on this site. This is step 1. Step 2 is कि बराबर में जो transfer RNA है, उस पे जो पेप्टाइड चेन है, वो आके अटैच हो जाती है इस अमीनो एसिड पे, अमीनो एसिड 6 पे. जैसे ही आके बैठता है फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि पेप्टाइड चेन आके अटैच हो जाती है अमीनो एसिड 6 पे. सही है. थर्ड स्टेप कि ये तो फ्री हो जाता है T5 फ्री हो जाता है, तो it goes to the donor site and it starts the process again. एक और अमीनो एसिड लाता है वापस. सही है. ये तो चले गया. अब ये जगह खाली हो गई T5 की, तो T6 जो है वो आके बैठ जाता है T5 पे, और T6 पे इस बार पूरी वो पेप्टाइड चेन होती है. ठीक है. ये जगह खाली हो गई T6 की, इस पे एक और ट्रांसफर आरएनए आके बैठ जाता है. ऐसे प्रोटीन, ये पेप्टाइड चेन है, ये पेप्टाइड चेन पे मैसेंजर आरएनए पे जब स्टॉप कोडॉन आता है तो ये पेप्टाइड चेन रिलीज होती है, और ये पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जाके बैक्टीरिया में डिफरेंट प्रोसेस और ग्रोथ करवाती है. ये समझ में आया? अच्छा,
तो जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स हैं वो कहाँ कहाँ काम करती हैं, ये उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सही है। सो जो मैक्रोलाइड्स हैं और जो क्लोरमफेनिकॉल है, जो मैक्रोलाइड्स हैं ये और क्लोरमफेनिकॉल हैं, ये काम करते हैं 50S सब यूनिट पे और ब्लॉक करवा देते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन यानी ये स्टेप, ये जो पेप्टाइड चेन ट्रांसफर हो रही है अमीनो एसिड पे आके जो बैठ रही है, ये स्टेप ये इनहिबिट करवा देते हैं। ये स्टेप जब इनहिबिट होता है तो ये पूरा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का रुक जाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ और बैक्टीरियल प्रोसेसेस नहीं होते। ये समझ में आया? This is the mechanism of action of macrolides and chloramphenicol. It is a protein synthesis inhibitor जो इस स्टेप पे आके बैठता है, इस स्टेप पे आके बैठता है और ट्रांसपेप्टाइडेशन स्टॉप कर देता है। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये 50S राइबोसोम पे हो रहा है। ये 30S राइबोसोमो सब यूनिट है, ये 50S राइबोसोमो सब यूनिट है। ये सब कुछ 50S राइबोसोम पे हो रहा है। फिर ये जो ड्रग है हमारी नीचे जो 30S पे काम कर रही है, ये है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इस स्टेप पे काम कर रही है और टेट्रासाइक्लिन करवा रही है बाइंडिंग ऑफ द इनकमिंग चार्ज tRNA। ये जब भी अमीनो एसिड tRNA पे लगा होता है, ट्रांसफर RNA पे लगा होता है, उसे चार्ज्ड कहते हैं। तो ये mRNA पे बाइंडिंग रुकवा रही है। टेट्रासाइक्लिन क्या करी है? चार्ज्ड tRNA की बाइंडिंग रुकवा रही है ऑन mRNA। समझ में आया? जब बाइंडिंग नहीं होगी तो ये पूरा प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। That's why ये छोटे छोटे स्टेप्स रुकवा रही है, तो that's why they're bacteriostatic. You all know what bacteriostatic is? यानी वो किल नहीं करेगी बैक्टीरिया को, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस रोक देगी, तो स्टॉप द हाँ गोबिंद, गैस यूर राइट, स्टॉप कर देगी उसकी उन्हें किल नहीं करेगी मगर उसका प्रोसेस स्टॉप कर देगी, उनकी ग्रोथ स्टॉप कर देगी, multiplication. Okay, so this was the mechanism of action of macrolides, chloramphenicol and tetracyclines. Clindamycin का भी mechanism of action macrolides की तरह ही होता है. Okay, now can you all tell me कौन से दो protein synthesis inhibitors हैं that act on 3S ribosomal subunit? इन सब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स दो ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं जो 30S पे काम करते हैं। गुड महानूर, टेट्रासाइक्लिन्स एंड गुड गोविंद। और अमीनोग्लाइकोसाइड्स। डॉक्सीसाइक्लिन इज अ टेट्रासाइक्लिन। तो ये दो ग्रुप्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स और अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, सिर्फ ये दोनों हैं जो 30S पे काम करते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे काम करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, सबसे पहले हम लोग करेंगे टेट्रासाइक्लिन्स। इज दिस पेज क्लियर? No? Can you all open your books? This is your Kadzing review. Page number
देखना पड़ेगा. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स and सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बाद वाला टेट्रासाइक्लिन्स. मेरी बुक में 379 है. ओके. टेट्रासाइक्लिन्स का क्या है? पॉइंट नंबर 1, टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाता है कि वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे काम करती है. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, tetracyclines are bacteriostatic. That means they do not kill the bacteria. Very good. They are broad spectrum. उनका बहुत broad spectrum होता है. Means वो ग्राम नेगेटिव पे भी काम करती है, ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करती है, एनारोब्स पे भी काम करती है. अच्छा. Can tetracyclines be taken along with milk or antacids? No. सिर्फ गोविंदी प्रेजेंट है क्लास में, बाकी सब लोग रिप्लाई करो प्लीज. यस, इट शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क और एंटासिड्स क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन से इम्पेयर्ड हो जाती है बिकॉज इंटरेक्शन होता है. यस, इसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है. सही है. इसकी टेट्रासाइक्लिन्स की एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग होती है. एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग मतलब कि वो रिसाइकिल होता रहता है. रिसाइकिल होता रहता है. लिवर से वो गट में जाता है, गट में रीअब्सॉर्ब होके वापस लिवर में आता है. एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग का नुकसान क्या है? नुकसान या फायदा क्या है, किसी को पता है? एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग का कि अगर थोड़ी सी भी डोज देंगे तो ड्रग बहुत टॉक्सिक हो जाएगा क्योंकि वो रिसाइकिल होता जा रहा है. ठीक है. और वो थोड़ी भी ड्रग देंगे तो वो ड्रग बहुत पोटेंट हो जाएगा क्योंकि रिसाइकिल होता जा रहा है. हाँ, हिपैटोटॉक्सिक भी होगा वो ड्रग बिकॉज वो बार बार लिवर में आके मेटाबोलाइज हो रहा है. ठीक है. वापस गट से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वापस लिवर में आ रहा है. इट इज कॉल्ड एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग. अच्छा. It is doxycycline is mainly excreted through feces and the other drugs are eliminated through urine. So if doxycycline is excreted through the feces, what does that mean? कि renally compromised patients में कौन सी tetracycline देंगे? Can you reply chat में? डॉक्सीसाइक्लिन. यस, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन रीनली एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही तो रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में डॉक्सीसाइक्लिन देंगे क्योंकि वो थ्रू फीसेस एक्सक्रीट आउट हो रही है. ठीक है. अच्छा. एक ड्रग है थाइगीसाइक्लिन जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होती है सारे ड्रग्स के टेट्रासाइक्लिन्स के कंपैरेटिवली. टाइगीसाइक्लिन जो है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट, मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती, मतलब कोई बैक्टीरिया से वो रेजिस्टेंट नहीं होती टाइगीसाइक्लिन. व्हाई? बिकॉज इट इज लार्जर इन साइज. तो जो इफ्लक्स पंप के थ्रू बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वो नहीं हो पाता. टाइगीसाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन है. टाइगीसाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन है और वो इंट्रावेनसली दी जाती है और रेजिस्टेंस कोई बैक्टीरिया उसके खिलाफ नहीं कॉज कर सकता बिकॉज इट हैज अ ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट और वो इजिली इफ्लक्स पंप के थ्रू नहीं निकल पाती. अच्छा. तो कैन यू नेम द टेट्रासाइक्लिन्स? Someone other than Gobind, can you please name the tetracyclines? Tigecycline, Godisha, and
doxycycline and tetracycline. Yes, ठीक है. So आप लोगों के कैडजन के पीछे चार्ट दिया हुआ होता है, उस पे सारे नाम होते हैं. मिनोसाइक्लिन, टाइगीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन. ये टेट्रासाइक्लिन होता है. ठीक है. Then we have coming to the uses of tetracyclines. सबसे पहले can you point out the main uses of tetracyclines? Good. Treatment of acne में देते हैं, community acquired pneumonia में देते हैं, it works against mycoplasma pneumoniae, community acquired pneumonia में देते हैं, rickettsia infections में देते हैं, syphilis में देते हैं. Good. Community acquired pneumonia में देते हैं. Good. Treatment for acne में देते हैं. अच्छा, as a prophylaxis, किसी को chronic bronchitis है उसे देंगे as a prophylaxis कि उसे infection ना हो. Chronic bronchitis में infection avoid करने के लिए देते हैं. Lyme disease में देते हैं. Lyme disease में specifically doxycycline देते हैं. Leptospirosis में देते हैं. Good. Meningococcal carrier state का क्या मतलब है? कुछ पेशेंट्स होते हैं उन्हें वो कैरियर होते हैं मेनिंजोकोकस के, मगर उन्हें मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते नहीं हैं. वो अगर किसी और से कांटेक्ट में आए तो उनको दूसरे बंदे को मेनिंजाइटिस हो सकता है. सही है. तो मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में मिनोसाइक्लिन देते हैं. ये क्वेश्चंस आता है लाइम डिजीज में स्पेसिफिकली कौन सी टेट्रासाइक्लिन देते हैं, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन. मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में स्पेसिफिकली मिनोसाइक्लिन देते हैं. ठीक है. टॉक्सिसिटी पे आ जाएं. टॉक्सिसिटीज बहुत पूछी जाती हैं कि अच्छा, आई डिड नॉट लुक एट द टाइम, इट्स 12. सबसे पहले जल्दी करते हैं. टॉक्सिसिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन. सबसे पहले गुड जीआई डिस्टर्बेंस होती है. टीथ की डिस्कलरेशन हो जाती है बच्चों में. टूथ एनामल डिस्प्लेजिया होता है. गुड. रीनोटॉक्सिसिटी होती है. हेपेटिक टॉक्सिसिटी होती है. फोटो सेंसिटिविटी होती है. फोटो सेंसिटिविटी मतलब स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ठीक है. रेगुलरिटीज इन बोन ग्रोथ होती है और टूथ एनामल डिस्प्लेजिया होता है. मतलब एनामल के स्ट्रक्चर में और उसकी फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस होती है. अगर छोटी उम्र में बच्चों को टेट्रासाइक्लिन दी है तो उनको एनामल डिस्प्लेजिया हो जाता है और डिफॉर्मेशन हो जाती है. वर्टिगो हो सकता है. यस. ठीक है. So main points इसके क्या, सबसे prominent point इसका है tooth enamel dysplasia and irregularities in bone growth. ठीक है. Then we have macrolides. Macrolides के नाम जल्दी से बता दो. Macrolides के नाम. Good. Clarithromycin, azithromycin and erythromycin. इन सब के अलग फंक्शंस हैं. इन सब की हाफ लाइफ्स अलग हैं और इन सब की एलिमिनेशन अलग है. फॉर एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन की एलिमिनेशन बाइल से है. जो चीज भी बाइल से एलिमिनेट होती है दैट मींस इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसेस. ठीक है. तो ये रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में दे सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन. देन वी हैव क्लोरिथ्रोमाइसिन हैज हेपेटिक एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन. ठीक है. एजिथ्रोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन. गुड ईशान ईशान महानूर. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी क्या है मैक्रोलाइड्स की?
मैक्रोलाइड्स की मैक्रोलाइड्स मॉडरेट स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है. It does not have it does not cover as many organisms as tetracyclines or the other or aminoglycosides. अच्छा, इनकी क्लिनिकल यूजेस में, एक मिनट, मैक्रोलाइड्स के क्लिनिकल यूजेस में आ जाता है. ये निमोनिया यूज होता है. जहां भी यूजुनेला एंड माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है तो ये दो बैक्टीरिया जो हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया. सो यूजुनेला माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट काम करता है मैक्रोलाइड्स, तो ये देते हैं निमोनिया है. ये एच पाइलोरी इन्फेक्शंस में देते हैं, ये जीआई इन्फेक्शंस में देते हैं. इफेक्ट्स कैम्पाइलोबैक्टर. कैम्पाइलोबैक्टर जो है वो जीआई इन्फेक्शंस करवाती है, तो जीआई इन्फेक्शंस में देते हैं, एच पाइलोरी में देते हैं, क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया में देते हैं. क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में पाया जाता है, क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया. तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में देते हैं, निमोनिया में देते हैं, जीआईटी इन्फेक्शंस में देते हैं. ठीक है. इन द ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस, हाँ, डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो स्पेसिफिकली कुछ डिजीजेस के लिए देते हैं. एग्जाम्पल इरिथ्रोमाइसिन जो है वो वूपिंग कफ डिजीज के लिए देते हैं, जो वूपिंग कफ डिजीज के लिए देते हैं, और या इसे पर्ट्यूसिस भी कहते हैं. इरिथ्रोमाइसिन इज गिवन फॉर वूपिंग कफ डिजीज और पर्ट्यूसिस. बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, ऑर्गेनिज्म की वजह से. जो अजिथ्रोमाइसिन है वो एच इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सेला कैटरालिस और निसेरिया के लिए देते हैं. एच इन्फ्लुएंजा और मोरिक्सेला कैटरालिस क्या करवाता है? निमोनिया करवाता है, मेनिंजाइटिस करवाता है, जॉइंट इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन करवाता है, आई की प्रॉब्लम्स करवाता है. तो ये एजिथ्रोमाइसिन देते हैं. ठीक है. यूटीआई में देते हैं एजिथ्रोमाइसिन. सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन देते हैं यूटीआई में, सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन. ठीक है. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में देते हैं. माइकोप्लाज्मा एवियम एटिपिकल ट्यूबरकुलोसिस कॉज करवाता है, माइकोप्लाज्मा एवियम. इसके लिए कौन सी देते हैं? क्लेरोमाइसिन. ओके, लेट्स कम टू द टॉक्सिसिटी. इसकी टॉक्सिसिटी कोई बताए जल्दी से मैक्रोलाइड्स की. मैक्रोलाइड्स जीआई इरिटेशन, ऑलमोस्ट ये सारे जीआई इरिटेशन करते हैं. सो दैट इज अ वेरी, सबसे पहले यही कहना है. हाइपर सेंसिटिविटी, रैशेस, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करवाता है. जब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है यानी इरिथमियाज हो जाता है, इरिथमियाज हो जाते हैं, पेशेंट फेंट हो सकता है, तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करवा देता है इसकी टॉक्सिसिटी में. ठीक है. फिर ये अच्छा, ये और टेट्रासाइक्लिन्स दोनों ही प्रेगनेंसी में नहीं देते और बच्चों में नहीं देते. दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ये हेपेटिक साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इनहिबिट करवाता है. ये जब एंजाइम इनहिबिट होते हैं इसकी वजह से बहुत सारे दूसरे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता. उन ड्रग्स का प्लाज्मा लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, दूसरी ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं. तो ये इनहिबिट करवाते हैं साइटोक्रोम P450. ओके. देन वी हैव टेलिथ्रोमाइसिन. ये मैक्रोलाइड नहीं है, ये एक कीटोलाइड है. टेलिथ्रोमाइसिन ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स में देते हैं. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स किसी को पता है क्या होता है? एक डिजीज है, उसके लिए जो ड्रग दी जाती है वो बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब उस पर असर नहीं करती वो ड्रग. तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी है. टेलिथ्रोमाइसिन जो है वो उस बैक्टीरिया को देते हैं जो
रेजिस्टेंट हो चुका होता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी यही हैं, QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, हेपेटिक डिसफंक्शन हो जाता है। अच्छा, क्लिंडामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल मैक्रोलाइड्स तना ही है। इसके ये बहुत लिमिटेड इन्फेक्शंस के लिए देते हैं। इसका स्पेक्ट्रम बहुत स्मॉल है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट काम करते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड स्ट्रेन्स ऑफ मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इट्स गिवन एज अ प्रोफाइलैक्सिस फॉर एंजाइटिस। क्लिंडामाइसिन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, it is also, clindamycin is also given in skin and soft tissue infections, ठीक है। ग्राम नेगेटिव के लिए, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए ये काम नहीं करते क्योंकि there is poor penetration into gram negative organisms. It only works for gram positive foci, clindamycin. Then we have streptogramins. Streptogramins जो हैं वो दो ड्रग्स मिलके काम करती हैं, क्यूनोप्रिस्टिन, डेल्फोप्रिस्टिन, ये कॉम्बिनेशन में देते हैं। There are two drugs, two protein synthesis inhibitors which are bactericidal. एक तो ये क्यूनोप्रिस्टिन, डेल्फोप्रिस्टिन है, और दूसरी क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। ये दो हैं सिर्फ जो बैक्टीरियासिडल हैं, बाकी सारी बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ठीक है। टाइम कम है, वी हैव 5-10 मिनट्स, तो हम लोग अमीनोग्लाइकोसाइड्स पे आ जाते हैं। क्लोरमफेनिकोल जो ड्रग है उसका मेनली क्या पूछते हैं उसमें, उसके क्लोरमफेनिकोल की टॉक्सिसिटी पूछते हैं। टॉक्सिसिटी में दो चीजें आती हैं, एक है ग्रे बेबी सिंड्रोम। व्हाट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम? Am I going too fast? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? ओके, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग सुन भी रहे हो या क्या। इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माय लैपटॉप। अच्छा, ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है, it's the side effect of chloramphenicol. Chloramphenicol बहुत ही notorious ड्रग है, वो अब नहीं देते, अब इतनी अवॉइड कर दिया है कि सिर्फ टॉपिकली यूज में chloramphenicol देते हैं, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं। उस साइड इफेक्ट्स में ग्रे बेबी सिंड्रोम है और बोन मैरो सप्रेशन है। बोन मैरो जब सप्रेस होता है तो एप्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। उसकी साइड इफेक्ट्स में दो हैं, एप्लास्टिक अनीमिया व्हिच इज कॉज्ड बाय बोन मैरो सप्रेशन एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम। एप्लास्टिक अनीमिया में बोन मैरो से ब्लड सेल्स नहीं बनते, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स नहीं बनते, ठीक है। दैट इज एप्लास्टिक अनीमिया। ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, क्योंकि ब्लड सेल्स बन ही नहीं रहे हैं और एक एंजाइम होता है ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज, ये मेटाबॉलिज्म में काम करता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में ऑफ क्लोरमफेनिकोल। ये जो एंजाइम होता है बच्चों में नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो ब्रेकडाउन नहीं हो पाती इस ड्रग की बच्चों में। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं, साइनोसिस हो जाता है, पूरा फेस ब्लू हो जाता है और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है eventually. So what gray baby syndrome? It consists of three things: cardiovascular collapse, decrease in red blood cells, and cyanosis, which is because there is very less oxygenated blood. ठीक है, डेथ हो जाती है बेबी की। So it is hardly used. So amphenicol is hardly used now. लिंजोलिड तुम लोग पढ़ लें, इसके बहुत सारे ये ज्यादातर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रिजीम्स में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करता है लिंजोलिड। लिंजोलिड के साइड इफेक्ट्स हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम पूछा जा सकता है, इसमें क्या होता है कि जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, आई एम ऑन लिंजोलिड, are you all with me? I'm on linzolid.
लेनिजोलिड, सॉरी, लेनिजोलिड में क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स बता रही हूँ। वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा सकता है और सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहलाते हैं वो। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है अगर लिजोलिड लें। ठीक है, that patient is already taking an antidepressant that is serotonin reuptake inhibitor. He also took linezolid. तो ये तो उसे सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम में wait, I had written somewhere, एक मिनट। सेरोटोनिन सिंड्रोम में इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, ट्रेमर्स हो जाते हैं, स्वेटिंग आती है, डायलेटेड प्यूपल हो जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, लिनेजोलेट का साइड इफेक्ट है ये। नाउ लेट्स कम, ये वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस के खिलाफ काम करता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस के खिलाफ काम करता है। ठीक है, aminoglycosides, are you all with me? अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं याद रखने वाले। सबसे पहला टर्म है, कैन यू ऑल टेल मी अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरियोसिडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक? जल्दी से बताओ, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक अमीनोग्लाइकोसाइड? सिडल है, सही है। इसका एक वर्ड यूज होता है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, सही है। वैसे तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स को यही कहते हैं दैट इट इज बैक्टीरियोसिडल, मगर अमीनोग्लाइकोसाइड इज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। लोअर डोजेस में ये बैक्टीरियोस्टैटिकली काम करता है, हायर डोजेस में ये बैक्टीरियोसिडल हो जाता है। ठीक है, एक और चीज है अमीनोग्लाइकोसाइड्स में व्हिच इज कॉल्ड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। इसका मतलब है कि इसका किलिंग एक्शन परसिस्ट होता है अगर इसका प्लाज्मा लेवल भी बहुत कम हो गया हो। The killing action continues even when the plasma level has declined below measurable levels. सही है, बिल्कुल कम अमीनोग्लाइकोसाइड भी बॉडी में रह गई है, फिर भी उसका बैक्टीरियोसिडल एक्शन परसिस्ट करेगा। That is called post antibiotic effect. ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स को to reduce the toxicity of aminoglycosides इसे once daily डोज की तरह देते हैं, एक दिन में एक बार देते हैं सिर्फ, once daily डोज। सही है, ये पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड मतलब ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल है तो ये मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं कर सकता। लिपिड सॉल्युबल इजीली पास कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल मुश्किल से पास करते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल है, ये पोलर है अमीनोग्लाइकोसाइड, तो ये इजीली ये मूव अराउंड नहीं कर सकता, तो इसे इसलिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स को इंट्रावेनसली देते हैं, ओरली नहीं देते। ठीक है, it is given intravenously. It cannot pass the blood-brain barrier. It has limited tissue penetration. ठीक है, इसकी एक्सक्रीशन होती है through the kidneys, glomerular filtration से। अच्छा, अगर ये एक पेशेंट को दें जिसकी किडनी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि इसकी रीनल एक्सक्रीशन है, तो उसे डोज एडजस्टमेंट्स और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है ग्लाइकोसाइड्स की। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है बहुत। अच्छा, एक चीज, ये बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू जाती है। ऑक्सीजन उसे चाहिए होती है, अमीनोग्लाइकोसाइड को बैक्टीरिया के अंदर चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से वो एनारोब्स पे काम नहीं करता ग्लाइकोसाइड। ठीक है, it works on 30S ribosomal subunit, which is the other drug which works on 30S ribosomal subunit. जल्दी से बताओ। 12:15 पे क्लास एंड होनी थी, शुरू की डिस्टरबेंस की वजह से स्लो जा रही हूँ। अच्छा, तुम लोग वेट कर सकते हो ना? अच्छा, good. Tetracycline and aminoglycoside works on 30S ribosomal subunit. ठीक है, अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत पूछा जा सकता है। बाकी सबका एक तरह से ब्लॉक करता था प्रोटीन सिंथेसिस,
अभी मैं थोड़ी फ्लो में जा रही हूँ. स्टार्टिंग में तो बहुत हैपहज़र्ड हो रहा था क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग Zoom. It's like I'm talking to no one. It's like I'm talking to an empty screen. अच्छा. So इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पूछा जा सकता है. 3 स्टेप्स होते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में. फर्स्ट इज यू ऑल नो, अगर तुम लोगों की बुक्स खुली भी होंगी, ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. नाउ मैंने तुम लोगों को राइबोसोम की पिक्चर दिखाई थी. ऊपर उसके था 50s और नीचे था 30s. ठीक है, पूरी चीज को क्या कहते हैं, इसे तो ठीक है, समझ में आया. यानी वो 50s और 30s जो था, बैक्टीरिया वाली बात कौन सी, बैक्टीरियसिडल है. ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बैक्टीरिया के जाता है. यानी उसे ऑक्सीजन, अमीनोग्लाइकोसाइड को ऑक्सीजन चाहिए होती है अंदर जाने के लिए बैक्टीरिया के. ठीक है, तो वो एनारोब्स पे काम नहीं कर पाता, कवर नहीं करता एनारोब्स को, क्योंकि एनारोब्स ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते. ये वाली बात ईशा. अच्छा. अच्छा, इसका 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब 50s और 30s दोनों आके mRNA पे अटैच होते हैं, ये फॉर्म करता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तो ये अमीनोग्लाइकोसाइड ब्लॉक कर देता है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ये 50s और 30s दोनों जुड़ नहीं सकते राइबोसोम तक. ठीक है, ये स्टेप ब्लॉक करता है. फिर नंबर 2, they cause misreading of mRNA, causing incorrect formation of incorrect peptides and proteins. Misreading mRNA, मैंने बताया था mRNA पे कोडॉन्स होते हैं. ठीक है, RNA पे कोडॉन्स होते हैं और ट्रांसफर RNA पे एंटी कोडॉन्स होते हैं. वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स मिसरीडिंग करवाता है उन कोडॉन्स की, मिसरीडिंग ऑफ mRNA. ठीक है, जब मिसरीडिंग होगी mRNA की तो प्रोटीन्स ही गलत बनेंगी. ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेप. दे कॉज मिसरीडिंग ऑफ mRNA yielding non-functional proteins. और थर्ड स्टेप है दे इनहिबिट ट्रांसलोकेशन. ठीक है, ट्रांसलोकेशन इज एक साइड पे से दूसरी साइड पे जब जाता है पेप्टाइड चेन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. उस स्टेप को भी ब्लॉक करता है. 3 स्टेप्स को ब्लॉक करता है अमीनोग्लाइकोसाइड. ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. फिर मैकेनिज्म, अच्छा, टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाता है. ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस सबको पता है हर बैक्टीरिया में. अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स 3 तरह से होता है. ब्लॉक करता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये समझ में आया. फिर मिस रीडिंग करवाता है ऑफ mRNA. जब mRNA की मिस रीडिंग होगी तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन या गलत प्रोटीन बनेगी जो किसी काम की नहीं होगी. ठीक है, नंबर 3 इज इनहिबिट करवाता है ट्रांसलोकेशन. मैंने बताया था जब एक ट्रांसफर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी ट्रांसफर आरएनए पे जाके बैठती है, दैट इज ट्रांसलोकेशन. वो इनहिबिट करवाता है. सो ये 3 स्टेप्स हैं. समझ में आया गोविंद? अच्छा, फर्स्ट स्टेप में यही है कि जब 30 राइबोसोमल सब यूनिट और मैसेंजर आरएनए पहले बनते हैं, उसको कहते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. उसके ऊपर जब आके 50s राइबोसोमल सब यूनिट बैठता है, दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देता, वो blocks formation of initiation complex. ठीक है, first step is this.
ठीक है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस अमीनोग्लाइकोसाइड्स के लिए भी मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन्स के लिए भी है. टेट्रासाइक्लिन्स का पूछा जाता है जो मैं बताना भूल गई हूँ. टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? बहुत वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस होती है. टेट्रासाइक्लिन्स का बता रही हूँ मैं. फॉर्मेशन ऑफ पम्प्स, इफ्लक्स पम्प्स हो जाते हैं. इफ्लक्स पम्प्स के थ्रू रेजिस्टेंस होती है. टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के अंदर जाता है और इफ्लक्स पम्प्स के जरिए बैक्टीरिया से वापस बाहर फेंक देता है. दैट इज हाउ रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड इन टेट्रासाइक्लिन्स. या एक ऐसा राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन बनाता है बैक्टीरिया जो उस साइड पे जाके बैठ जाता है जहां टेट्रासाइक्लिन को बाइंड करना होता है. तो टेट्रासाइक्लिन बाइंड नहीं कर पाती. ठीक है. ये दो या तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हो जाती है उसकी बाइंडिंग साइड पे. ठीक है. ये तीन चार तरीके हैं जिस वजह से टेट्रासाइक्लिन्स की रेजिस्टेंस क्रिएट होती है. समझ में आया? कोई एक कह दे हाँ टेट्रासाइक्लिन्स की. ओके, I'll just repeat it once. Tetracycline resistance बहुत widespread है. नंबर 1 वो efflux pumps बैक्टीरिया बनाते हैं जो टेट्रासाइक्लिन बाहर चली जाती है. नंबर 2 ऐसे राइबोसोमल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनाते हैं जो उस टेट्रासाइक्लिन को जहां बाइंड करना होता है वहां जाके बैठ जाता है और टेट्रासाइक्लिन बाइंड नहीं कर पाता. 3 स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं टेट्रासाइक्लिन की बाइंडिंग साइड पे. ऐसे रेजिस्टेंस क्रिएट होती है. उसी तरह हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स में रेजिस्टेंस देख सकते हैं और वो रेजिस्टेंस होती हैं ग्रुप ट्रांसफरेजेस. अमीनोग्लाइकोसाइड्स में रेजिस्टेंस होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम जिसका नाम है ग्रुप ट्रांसफरेजेस. ठीक है. वो plasmid mediated formation of inactivating enzymes. These enzymes are called group transferases. ठीक है. ये नंबर 1 स्टेप है फॉर रेजिस्टेंस इन अमीनोग्लाइकोसाइड्स. चेंजेस इन द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट दूसरा रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है. ठीक है. ऑलमोस्ट सेम ही है सबके. के रेजिस्टेंस मैकेनिज्म में अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बस ये है ग्रुप ट्रांसफरेजेस. इस एंजाइम का नाम याद करना होगा. ये एंजाइम क्या करवाता है? इनएक्टिवेटिंग एंजाइम है, इनएक्टिवेट करवा देता है अमीनोग्लाइकोसाइड को. दूसरा है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट में चेंजेस आ जाती हैं. ठीक है. जहां जाके अमीनोग्लाइकोसाइड बाइंड करता है. सो दिस इज हाउ रेजिस्टेंस इज कॉज्ड. क्लिनिकल यूजेस में अमीनोग्लाइकोसाइड के नाम पता होने चाहिए. जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत पूछी जाती है. जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन जो है वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स पे काम करती है. ये सारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स के नाम है. ग्राम नेगेटिव रॉड्स पे काम करती है. ठीक है. अच्छा, वो enterobacteria are the bacteria that are related to the GI tract. Aminoglycosides का gentamicin, tobramycin, amikacin GI tract के बैक्टीरिया enterobacteria पे काम करती है. UTI infections में देते हैं, pneumonia और meningitis में देते हैं. H influenza, Moraxella catarrhalis pneumonia भी करवाता है, meningitis भी करवाता है, which is a gram negative bacteria. तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स उसके खिलाफ काम करती हैं. उसके अलावा they have a synergistic effect. ये पढ़ा है तुम लोगों ने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में भी. ठीक है. वो अमीनोग्लाइकोसाइड सिनर्जिस्टिकली बहुत अच्छा काम करती हैं. बल्कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे वो सिर्फ सिनर्जिस्टिकली काम कर सकती हैं विद अ पेनिसिलिन. उससे सिनर्जिस्टिकली काम करती हैं तो उसका enhance हो जाता है फंक्शन. ठीक है. उसका एक्टिविटी enhance हो जाती है ग्लाइकोसाइड्स की. तो सिनर्जिस्टिकली वो पेनिसिलिन के लिए बहुत सारे डिजीज में काम करती है. एक डिजीज है एंटेरोकोकल इन्फेक्शन. ये पूछा जाता है. एंटेरोकोकल कार्डाइटिस. एंटेरोकोकल कार्डाइटिस में कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड सिनर्जिस्टिकली काम करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन के साथ काम करती है या किसी भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के साथ
और प्रिवेंट करती है एंटेरोकोकार्डाइटिस। ठीक है, पूछा जाता है। दूसरी चीज है ट्यूबरकुलोसिस, प्लैक और ट्यूलरीमिया में भी सिनर्जिस्टिकली काम करती है विद पेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन सिनर्जिस्टिकली काम करती है विद पेनिसिलिन ताकि उसकी एक्टिविटी इनहैंस हो जाए। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में, प्लैक में, प्लैक डॉक्टर इत्तेफाक का बहुत कॉमन क्वेश्चन है वाइवा का। प्लैक में ब्लैक को पूछते हैं क्या होता है, काला आजार क्या होता है। ठीक है, प्लैक में प्लैक इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन सा ड्रग देते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं विद पेनिसिलिन। ठीक है, देन इज ट्यूलरीमिया। ट्यूलरीमिया भी एक इन्फेक्शन है आई, स्किन और लंग्स का, लिम्फ नोड्स का। ट्यूलरीमिया रोडेंट्स से, इन्फेक्टेड एनिमल्स से होता है। ये 4 डिजीजेस हैं। नंबर 1 एंटेरोकोकार्डाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, प्लैक एंड ट्यूलरीमिया। इसमें सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अच्छा, नाम पूछा जाता है टॉपिकली कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड देते हैं? दैट इज, कैन एनीवन टेल मी टॉपिकल कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड देते हैं? जेंटामाइसिन टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड है। ठीक है, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन बहुत ही टॉक्सिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, उनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। नियोमाइसिन और कैनामाइसिन भी टॉपिकल या ओरल यूज के लिए देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू टॉपिकल या ओरल यूज, उनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। जेंटामाइसिन भी टॉपिकल यूज के लिए देते हैं। अच्छा, इसकी टॉक्सिसिटी अमीनोग्लाइकोसाइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अमीनोग्लाइकोसाइड में NO, अगर देखो अमीनोग्लाइकोसाइड की स्पेलिंग में NO आता है, नो। ठीक है, इससे इसकी सारी टॉक्सिसिटीज, ये एक मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इससे तुम लोग याद रखो कि इसकी सारी टॉक्सिसिटीज NO से रिलेटेड है। N इज दैट इट इज नेफ्रोटॉक्सिक, O इज दैट इट इज ओटोटॉक्सिक। ओटोटॉक्सिक मतलब ईयर्स की टॉक्सिसिटी, वेस्टिब्यूलर डैमेज हो जाता है और ऑडिटरी इम्पेयरमेंट हो जाती है। इट इज ओटोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक इज रीनोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, जो इसकी ओटोटॉक्सिसिटी है दैट इज इरिवर्सिबल, यानी वो अमीनोग्लाइकोसाइड एक बार करवा दे ओटोटॉक्सिसिटी, हियरिंग लॉस करवा दे, वो वापस ठीक नहीं होगा। उसकी रीनोटॉक्सिसिटी इज रिवर्सिबल। ठीक है, वो वापस ठीक हो सकती है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज फीटल एक्सपोजर अगर हो जाए, एक प्रेगनेंसी में किसी फीमेल ने खा ली तो जो बच्चा पैदा होगा वो उसमें सुनने की सलाहियत नहीं होगी। सही है, ओटोटॉक्सिसिटी इसकी उन ड्रग्स के साथ बढ़ जाती है जिनका साइड इफेक्ट ओटोटॉक्सिसिटी ही है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने लूप डायरेटिक्स पढ़ लिया है, उसमें फ्यूरोसेमाइड पढ़ा होगा। अगर ये ड्रग अमीनोग्लाइकोसाइड लूप डायरेटिक्स के साथ दें, बस एंड कर रही हूँ, सॉरी, दिस इज ये लास्ट है, टॉक्सिसिटी ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड लास्ट टॉपिक है। सही है, तो ओटोटॉक्सिक है। सही है, कुछ ड्रग्स हैं जिनके साथ उनकी ओटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। सो NO अमीनोग्लाइकोसाइड्स में नेफ्रोटॉक्सिक, O फॉर ओटोटॉक्सिक। एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है इसका थर्ड टॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है। NO से याद रखना, नो एसिटाइल कोलिन। सही है, जब अमीनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं तो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है। जब रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन कम होता है तो मसल वीकनेस हो जाते हैं। मसल वीकनेस होती है तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है। मसल वीक हो गई, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है, which is a lethal condition. So इसका एक साइड इफेक्ट है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। एसिटाइलकोलिन कम होगी तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। इसका लास्ट टॉक्सिसिटी है स्किन रिएक्शंस हो जाता है। मोस्ट लाइकली ये एडवर्स इफेक्ट है नियोमाइसिन का, which is an aminoglycoside। एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है, डर्मिस की इन्फ्लेमेशन। सही है, दैट इज इट। देयर आर सम पिक्चर्स, अगर तुम लोगों के पास टाइम है दिखा देती हूँ, वरना इट्स ओके। बस तुम लोगों को बताना है ये क्या है। ये कौन सी कंडीशन है, जल्दी से बता दो।
कौन सी कंडीशन है और कौन सी ड्रग ये कॉज करवाती है? चार, हाँ, एक मिनट, मुझे चैट नहीं आ रही है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मुझे चैट नजर नहीं आ रही है, मैं खुद ही बता देती हूँ। आई होप खुल जाए। अच्छा, खुल रही है। यस, गुड ईशा। यस, इट्स बेबी सिंड्रोम क्लोराम्फेनिकोल। यस राहुल, गुड। ठीक है, इसमें होता है साइनोसिस हो रहा है। ब्लू, मैं पिक्चर्स खोल रही नहीं क्योंकि फिर चैट बंद हो रही है मेरी बार बार। यू ऑल लुक एट दीस पिक्चर्स, ये 4 पिक्चर्स हैं बस। ठीक है, नजर आ रही है ना? लार्ज आइकॉन्स कर दूं? ओह शूट, ठीक है। ये जो है, ये किस चीज की पिक्चर है? ये जो टीथ बने हुए, ये है टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग की, सही है। ये एक्ने की पिक्चर है। इसमें पूछा जा सकता है ये क्या है इसकी ट्रीटमेंट, विच इज टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग की पिक्चर है। ये ग्रे बेबी सिंड्रोम की पिक्चर है। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी किसमें होती है? Let me take your attendance. Wait. Aminoglycosides good due to tetracycline. Macrolides नहीं है आंसर। Aminoglycoside की toxicity है, yes. Nephrotoxicity and ototoxicity. Okay, thank you everyone. I hope you all understood. Best of luck for your exams. कुछ पूछना हो पूछ लेना मुझसे. The CR has my number and ठीक है. You have taken your attendance. Thank you. Take care everyone. Allah Hafiz.